So today in the second lecture of the magnetic effect of current, I am going to cover the following topics: Lorentz force, definition of magnetic field, Fleming's left-hand rule, motion of a charged particle in a magnetic field, velocity selector, cyclotron. So Lorentz force. Now what is Lorentz force? Now whenever a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a force. This force is known as the magnetic Lorentz force. The value of this force is directly proportional to the strength of the magnetic field, that is F is proportional to B, F is proportional to Q, magnitude of charge, F is proportional to V sine theta, where theta is the angle between the magnetic field and V. So from here it is clear that theta is the angle between magnetic field and the velocity. Now if we combine all these three, we will get the result F is equal to QVB sine theta. Here Fm, M stands for the magnetic field. So लॉरेंज फोर्स, जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स की वैल्यू is equal to QVB sin theta, where theta is the angle between the velocity and the magnetic field. Now since force is a vector quantity, तो अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तब हमारे पास इक्वेशन बनती है Fm is equal to Q V क्रॉस B, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन VB. 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था. यहाँ velocity and B magnetic field both are the vector quantities. So QVB sin theta के place में we can write F is equal to QV cross B. Now since F is equal to V cross B, so on the basis of this, now three special cases arises. Now if the velocity V is equal to 0, V0 means the charged particle is at rest. So from the expression it is clear that force will be equal to 0. It means no force will act on the charged particle. अगर वो stationary है तो वो stationary ही रहेगा magnetic field में. Now if theta is 0 or 180 degree, since theta is the angle between velocity and the magnetic field, so 0 means it moves parallel and 180 degree means it is moving anti-parallel to the direction of the magnetic field. So since sine 0 is 0 and sine 180 is also 0, so we can say that Fm is equal to 0. It means no force will act on the particle if the charged particle is moving in the direction of the magnetic field or opposite to the direction of the magnetic field. That means उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जैसे मूव कर रहा है वो वैसा ही मूव करता रहेगा. It means if it is moving in a straight line, it will continue to move in a straight line. Now if the angle between the velocity and the magnetic field is 90 degree, that means the charged particle moves perpendicular to the magnetic field. Now since sin theta sin 90 is equal to 1, उस केस में force acting on the particle will be maximum and its value will be equal to QVB. So maximum force will act when the charged particle is moving perpendicular to the direction of the magnetic field. Now on the basis of this we can define the magnetic field. Now from the relation Fm is equal to QVB sin theta. So from here we can say that B is equal to Fm upon VB sin theta. So if theta is 90 degree, V is equal to 1 unit and Q is equal to 1 unit, then B is equal to F. So we can say that magnetic field is equal to the force on a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field at that point. So B is equal to F. Now Fleming's left-hand rule. This you have learnt in 10th class also. अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर को थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, if we spread our left hand thumb, forefinger and middle finger like this as shown in the figure, then if forefinger points to magnetic field, middle finger points to electric current, then thumb will show the direction of the force. As from the expression that F is equal to
V cross B, it means V cross B, that means the force is, direction of the force is perpendicular to velocity and B, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो उसके बेसिस पर अब इस फिंगर से यहाँ से फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर थंब की डायरेक्शन है। सो दिस रूल वॉज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इन शॉर्ट अगर हमें इसको याद रखना है तो हम इसको याद रख सकते हैं FBI। F मतलब फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज इलेक्ट्रिक direction of the electric current. Electric current means the motion of the positive charge particles. Now let us discuss the motion of a charged particle in a magnetic field. Now two cases arises. If the charged particle is moving in a magnetic field but it is moving perpendicular to the magnetic field. Now in this figure the dot shows द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो हम डॉट से शो करते हैं या फिर क्रॉस से। क्रॉस से अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होती है और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस फिगर डॉट से मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इट इज अपवर्ड और कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वेलोसिटी, it is clear that from here the direction of the velocity is shown in this direction. Now according to the Fleming's left hand rule, the force, अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी के बाद ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। मींस अगर पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसे एक इस डायरेक्शन में इसको मूव करना होगा। अब इस डायरेक्शन में मूव करने पर फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स फिर उसका सेंटर की डायरेक्शन में उसको एक सर्कुलर पाथ में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा परपेंडिकुलर टू बोथ। तो इस फोर्स की वजह से पार्टिकल इस डायरेक्शन में ना मूव, इस डायरेक्शन में मूव ना करके, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव ना करके फिर ये एक डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। इस डायरेक्शन में जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसके ऊपर फोर्स फिर सेंटर की तरफ लगेगा। तो ऑल द टाइम ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन फोर्स सेंटर की तरफ ही वर्क करेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हेंस इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट इज F = QVB। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। इक्विलिब्रियम में वी कैन से दैट QVB = mv²/r एंड इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r = mv/qb एंड टाइम पीरियड दैट इज द डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी, डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr/v एंड इसको रिड्यूस करने पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 2πm/qb। सो इन दिस वे वी कैन से केस 1 की जब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा देन इट विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू mv/qb और टाइम पीरियड होगा 2πm/qb। अब इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है, देयर इज नो फैक्टर ऑफ द वेलोसिटी। मींस टाइम पीरियड और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। रेडियस जरूर उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है लेकिन टाइम पीरियड की एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। नाउ सेकेंड केस अराइजेस कि अगर पार्टिकल किसी एक एंगल पर मूव कर रहा है, इफ द पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब उस केस में क्या होगा, जैसे कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, अब इसकी वजह से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू v
cos थीटा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी v sin थीटा। v sin थीटा, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंगली इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट हमने कर दिए हैं। अब अगर हम इस पैरेलल कंपोनेंट को ध्यान से देखें, v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा। अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अभी इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। कोई फोर्स नहीं लगने का मतलब ये पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में v cos थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विदाउट डिफ्लेक्टिंग, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। लेकिन ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इसके ऊपर एक सर्कुलर फोर्स लगेगा एंड इट विल इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये एक सर्कल मोशन में मूव करेगा, तो ये सर्कुलर पाथ इसका बनेगा। तो अब दो तरह के मोशन हो गए, ये सर्कल में भी मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है आगे बढ़ रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है आगे बढ़ रहा है। तो इमेजिन करिए कि ये ऐसा पाथ, इसकी शेप क्या होगी, दैट विल बी शेप लाइक दिस, कि एक सर्कल में मूव किया फिर आगे बढ़ गया, फिर सर्कल में मूव किया आगे बढ़ गया, तो ये जो शेप बनकर आएगी दैट दिस शेप इज नोन एज द हेलिकल शेप और हेलिकल मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। और जो पाथ बनेगा दैट इज द हेलिकल, मतलब एक स्प्रिंग की तरह से इसका पाथ बढ़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में भी इन बढ़ रहा है और साथ में सर्कुलर पाथ भी मूव कर रहा है। तो अब दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज नोन एज द पिच, और इस पिच की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द डिस्टेंस एंड अपॉन द इनटू द वेलोसिटी दैट इज v cos थीटा एंड द time period, time taken to complete one revolution. So this distance is known as the pitch, between the distance between the two adjacent turns. So when the particle moves in a magnetic field by making some angle with the magnetic field, then the motion or the path is the helical path. Now let us discuss one more term, that is the velocity selector. दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कर रहा है एंड वी वांट कि वो अपनी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे जिससे वो मूव कर रहा है, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। सो वी विल सेलेक्ट अ वेलोसिटी इन सच अ मैनर दैट इट विल मूव विदाउट डिफ्लेक्शन और अनडिफ्लेक्टेड। नाउ अब सपोज ये पार्टिकल चार्ज Q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा QE, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज अपवर्ड, चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो फोर्स जो लगेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, Q V क्रॉस V, जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट करें, क्योंकि Q कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमने उसको वेलोसिटी से भेजा है, अगर हम E और B की वेलोसिटी को इस तरह से चूज करें तो उस केस में ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, QE इज इक्वल टू QVB एंड वी विल गेट एन एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू E अपॉन B। मतलब E और B हमने अपने हिसाब से सिलेक्ट करके हमने V की वेलोसिटी V की वैल्यू को सिलेक्ट किया है, तो वी हैव सिलेक्टेड द वेलोसिटी, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द वेलोसिटी सिलेक्टर। So velocity selector means that velocity of the charged particle in the presence of perpendicular or the crossed electric and the magnetic field in such a way that it pass undeflected. So E or B, E upon B will give the such velocity. This is known as the velocity selector. Now let us come to the important device based on this Lorentz magnetic force or the Lorentz force. Now cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles, usually proton, neutron, alpha particle, to large kinetic energies. These particles are then used for the nuclear collision experiments to produce radioactive isotopes.
So cyclotron is illustrated in this figure. These are the two strong magnets. This is the high frequency oscillator, or you can say the alternating current is applied over here. In between there are the two Ds, D1 and D2, जिनके बीच में आयंस को यहाँ से आयन सोर्स एंटर करता है और फिर एक विंडो से ये बाहर निकल कर आता है। इसको आप फिर से इस फिगर में देखिए, ये दो आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं। विंडो बीच में सेंटर से आयन सोर्स से एक आयन को इसके अंदर सेंड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, और ये हाई ऑसिलेटर जो कि इस D1 और D2, क्योंकि ये D की शेप में इसलिए दे आर नोन एज द डीज। इन डीज पर ये हाई ऑसिलेटर किससे इनमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंजेस इस डायरेक्शन कंटिन्यूसली। सो D1 और D2 की पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब इसमें क्या है कि सपोज करिए कि जिस समय आयन सोर्स इस सेंटर से यहाँ से एंटर कर रहा है, D1 आपका पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है। क्योंकि ये जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो नेचुरली इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव D। तो ये चार्ज जैसे ही यहाँ से एंटर करता है और उस समय अगर D2 नेगेटिव है तो दिस चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स D2। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स जो लगेगा दैट विल डिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर टू इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ इन अ सेमी सर्कल। जैसे ही इट विल लीव D2, फ्रीक्वेंसी इसकी इस तरह से सेट करी जाती है कि जैसे ही ये D2 को लीव करके D1 के पास पहुंचता है तो D1 की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाती है और D2 की पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेचुरली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव बन चुकी है तो ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ से रिपल्शन और यहाँ से अट्रैक्शन मिलने से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और फिर अगेन वही एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। तो इस D1D के अंदर भी ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेगा। फिर मीन द टाइम D1 से जैसे ही लीव करना होगा D2 नेगेटिव हो जाएगी, अगेन इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स D2 और ये मोशन जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा एंड एवरी टाइम इट्स वेलोसिटी विल increase. So process continues till the charge travels through the whole space in the D's, and every time its speed increases, and finally when its speed increases to very large, it comes out through the window W from outside from to the D's. D's से ये बाहर इस विंडो की हेल्प से आ जाता है। अब इस तरह से बार बार डीज के अंदर घूमने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एवरी टाइम जब मैग्नेटिक फोर्स इस पर इंक्रीज कर रहा है तो बाय द चार्ज प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वही फिर पहले की तरह से mv² सेंट्रीपिटल फोर्स QVB साइन थीटा, एंड हेयर थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो sin 90 is 1, and from here we can say that V is equal to BQR upon M. Now if T is the time taken by the charge to describe the semicircular path inside the D, उस केस में टाइम is equal to distance upon velocity. Distance semicircle है तो semicircle का circumference that is pi r and velocity v. So if you put these values we get time is equal to pi m upon BQ. Now if T is the time period of the high frequency oscillator, जो हम जिससे कि हम velocity D1 D2 को जैसे ही लीव करता है D1 पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, तो इसकी वेलोसिटी हम इस तरह से लेते हैं कि T is equal to 2T और T is equal to 2 pi m upon BQ. सो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और द साइक्लोट्रॉन का टाइम रेवोल्यूशन। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t दैट इज BQ अपॉन 2 pi m। सो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू BQ अपॉन 2 pi m अगर हम फिक्स करते हैं तो उस तरह से हम चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन के बीच में एंटर करता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते चले जाते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है तो एवरी टाइम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा BQR अपॉन m, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है हाफ b² q² r² अपॉन m। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
नेचुरली जब उसके सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट बिकम्स टू इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डी, वन ऑफ द डी. So maximum kinetic energy can be half b square q square r square upon m. So this is the expression for the kinetic energy of the particle. अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का q भी कांस्टेंट है, r हमारा रेडियस ऑफ द d है, लेकिन m जैसे जैसे स्पीड पार्टिकल्स की बढ़ती है m कांस्टेंट नहीं होता. In general, we can say in microscopic level, we can say that m is constant. लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ जाती है तो आइंस्टीन्स के रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली m की वैल्यू चेंज होती है इस फॉर्मूले से. m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पावर 1/2 और अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. सो एज v इंक्रीजेज, as from here you know that if b increases then the value of the denominator decreases, or we can say that m increases, or in short we can say that as the velocity of the particle increases the mass also changes. अब mass change हो रहा है तो इसकी kinetic energy भी change हो रही है. kinetic energy change हो रही है means इसकी frequency, यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी frequency क्योंकि mass के inversely proportional है तो mass के change होने से frequency भी change हो रही है. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इज वेरिड, अगर हम अब इस फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम उसको वेरी करते हैं, तब हमारा साइक्लोट्रॉन कहलाता है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन. और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके साइक्लोट्रॉन को सिंक्रोनाइज करते हैं तब ये साइक्लोट्रॉन कहलाता है आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देने की है कि साइक्लोट्रॉन केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट करता है. इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड थ्रू द साइक्लोट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो वेरी सून दे क्विकली दे गेट अ वेरी हाई एनर्जी and they become out of phase with the alternating EMF and get lost within the days. So इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं इससे एक्सेलरेट कर सकते, न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड. So that is all for today. These are some numericals for home assignment for you. That is all. अब इस पूरे लेक्चर में जितने भी फॉर्मूले आए हैं उन फॉर्मूलेज को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि वीकली टेस्ट उन्हीं फॉर्मूलेज पर बेस्ड होगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा. थैंक यू.